Good morning, dear student. So once again, we are to discuss one of our very important topic, that is called journal. So class 11 standard के लिए journal is a very important topic. So first of all, journal के बारे में mainly तीन information है. Number one information कि ये book of original entry है. Original entry का मतलब है कि आप इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड को करेंगे. कोई भी ट्रांजैक्शन आपको you just get to know about the happening of an economic activity, and if you feel that activity needs to be recorded in your account, then you will first record it in the journal format. That's why it is called a book of original entry, or sometimes it may be called as book of first entry. Second thing is that it's a common record. Common record का meaning होता है कि here in journal we never classify the accounts in a separate form, like these are only cash related transactions, these are only purchase related transactions, these are only sales related transactions. In this way we will never classify it. So in the single page या book या copy we record every activity. That is why it is called in common for all account. Third thing is this as per chronology. Chronology of date and time. इसका मतलब है ये जो भी एक्टिविटी जैसे ही संपन्न होता है, एनी एक्टिविटी, एनी ट्रांजैक्शन, एज एंड व्हेन इट हैपन्स, it need to be recorded on appropriate date and on appropriate time. इसमें आपका चॉइस नहीं हो सकता. The information that we receive of happening at transaction, you have to record it immediately. You cannot wait, or you cannot apply your judgment. Okay. दूसरी बात हम देखना चाहेंगे कि जो जर्नल है उसका फॉर्मेट कैसा होता है. तो ये जो जर्नल का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जर्नल फॉर्मेट में आपका कुल 1, 2, 3, 4, 5 there are 5 columns, but all 5 columns are of not same distance. It is a mental experience based practice. For writing the date you need that much of length only. For writing the amounts you need that much of length only. For writing the page number, this much of length is enough. But for writing the detailed headings of the accounts, better you keep a larger area. The first column is called date, where you will write down the date when the transaction had happened. Then the particular column, here you will write the names of the accounts. The ledger file, it is a reference page number. Generally in class 11 standard इसका उपयोग नहीं होता है. Then the amount for debit figures and amount for credit figures. ये होता है इसका फॉर्मेट.
आप लोग इस क्लास को सुनते भी जाना एंड नोट भी करते जाना, जस्ट लाइक ए नॉर्मल स्कूल क्लास। नाउ यहाँ हम आते हैं रूल्स पे। रूल, जर्नल करने का जो रूल है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपका एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका 5 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स। ओके, एसेट जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मटेरियल, वो सब एसेट होता है। तो एसेट का भी एक लंबा सा लिस्ट है। जैसे कुछ certain assets are called tangible, which we can see, जिसका presence we can realize, increase, decrease we can realize, feel, like machinery, land, building, furniture, motor car, sports equipments. These are fixed assets, जिसको हम tangible भी कहते हैं। उनमें से कुछ certain assets are called current assets. Current assets are like cash in your hand, cash deposit at your bank, then short-term investment, then receivables. These are current assets. There are some assets which are called intangible. Intangible assets are like goodwill, then royalty, license, trademark, copyright. These are assets, but you cannot see these assets, and ऐसा asset जिसको सिर्फ अकाउंट्स संबंधित लोगों को ही समझ में आता है, जनरल पीपल के लिए ये थोड़ा एसेट मानने के लिए मुश्किल है। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा अलग तरीके से। यू हैव टू थिंक दैट व्हाई दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इसलिए इंटेंजिबल कहते हैं कि आप आँख से नहीं देख सकते, बट उनका इफ़ेक्ट जो होता है इन बिजनेस में इसका जो इफ़ेक्ट है उसको देखते हुए इनको एसेट का परिभाषा यू कैन गिव। सो एसेट कैन बी इंक्रीज्ड। आवर प्रॉब्लम इज दैट एसेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज ए कार, you already have one car, now you purchase another car. You already have one car, now you purchase another car. तो आपके पास अभी कितना कार हो गया? 2 कार। 1 पहले था, अब क्या हो गया? 2 कार। सो ये क्या हो गया? इंक्रीज। You already have 2 cars, you sold 1 car, माइनस। अब आपके पास कितना कार रह जाता है? 1 कार।
तो ये होता है डिक्रीज। ठीक है, सो एसेट कैन बी इंक्रीज एंड कैन बी डिक्रीज। लेकिन आप एसेट को इंक्रीज और डिक्रीज बोल के यू डोंट राइट, आप इसके बदले यू राइट ए सीक्रेट लैंग्वेज जो आपको और हमको छोड़ के अदर कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू राइट एसेट इंक्रीज तो सबको समझ में आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ यू राइट एसेट डेबिट, एसेट डेबिट, तो मतलब क्या हो गया, एसेट इंक्रीज। इंक्रीज शब्द को डेबिट वर्ड से रिप्लेस नहीं किया गया है। इंक्रीज वर्ड को डेबिट से रिप्लेस नहीं किया गया है, बल्कि दो शब्द मिला के एसेट प्लस इंक्रीज, ये दोनों मिला के डेबिट किया गया है। एसेट इंक्रीज, तब ये डेबिट। एसेट प्लस डिक्रीज, एसेट के साथ डिक्रीज शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया क्रेडिट। सर ये क्रेडिट क्या है? क्रेडिट कुछ नहीं है, आपको हमने इशारा से समझाया कि एसेट क्रेडिट माने आपको क्या समझ में आया? आपको अल्टीमेटली वही समझ में आया कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने डिक्रीज शब्द बोलता तो ये कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन हम अकाउंटेंसी के लिए एक अलग लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। उसी तरह से हम पहले ही बताया था कि इंक्रीज वर्ड से डेबिट नहीं समझ में आना चाहिए। इंक्रीज वर्ड इज नॉट इक्वल टू डेबिट। एसेट प्लस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अब लायबिलिटी प्लस इंक्रीज होगा तो भी डेबिट होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जनरल हम नहीं करना चाहते, थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहते। कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा और सिक्योरिटी भी बना रहेगा। जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन है वहीं ज़्यादा सिक्योरिटी भी होगा, सेफ्टी भी होगा। तो लायबिलिटी प्लस इंक्रीज, लायबिलिटी प्लस इंक्रीज दोनों मिला के क्या होगा? क्रेडिट। और लायबिलिटी प्लस डिक्रीज ये मिलने से क्या होगा? डेबिट। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न एक रखा गया है। घबराने का कोई बात नहीं है कि इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि कभी किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार अच्छी तरह से मेमोराइज कर लोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो एसेट इंक्रीज इज इक्वल टू डेबिट, एसेट डिक्रीज इज इक्वल टू क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज, एक वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, डिक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया। कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, कैपिटल डिक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया। इनकम इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, इनकम डिक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। अब बच्चे आप लोगों को लायबिलिटी समझ में आता है कि नहीं आता है? लायबिलिटी मीन्स have to pay money in future. If you take money from bank, it's a liability because you have to return the money to the bank. If you purchase goods on credit, उधार में आप goods खरीदते हो तो it's a liability because you have to pay the money to the shopkeeper in future. So anything which create a responsibility
to pay money in future, that is called liability. तो liability का जो फ्यूचर का जो लॉन्गेविटी है, फ्यूचर माने कल भी तो फ्यूचर है और 10 साल बाद भी फ्यूचर ही है, तो ये जो फ्यूचर का लॉन्गेविटी है उसको हम 1 ईयर टू मोर देन 1 ईयर के हिसाब से we clubbed it in two parts. If the the tendency to pay the money in future comes within 1 year, मतलब रिटर्न करने का अवधि जो है तो 365 डेज़ के अंदर है, तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। या भुगतान करने का रीपेमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मोर देन 365 डेज़ है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। कहीं पे एक हाइब्रिड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म लायबिलिटी, जो अभी तक ठोस डेफिनेशन तो नहीं आया है, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया है कि एनीथिंग बिटवीन 1 ईयर टू 5 ईयर उसको मिड टर्म कहा जा सकता है। फ़िलहाल मिड टर्म के बारे में कोई गारंटेड इन्फॉर्मेशन हमें है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए दो ही चयन है, वन इज़ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी below 365 days and one is long term liability. अब लायबिलिटी इंक्रीज कैसे होता है? जब न्यू लायबिलिटी आते रहते हैं आपका ज़िंदगी में, तो इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स इंक्रीजिंग। अब आप लायबिलिटी का भुगतान करते चले जाते हो तो इससे आपका बकाया राशि कम होते जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एन डिक्रीज इन लायबिलिटी। देन कैपिटल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस में कि द मनी यूज्ड टू स्टार्ट अप ए बिजनेस या द प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्टार्ट अप ए बिजनेस इज कन्वर्टेड टू कैपिटल। जो प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मनी आप बिजनेस को शुरुआत करने के लिए व्यवहार कर देते हैं, तो इट इज़ मनी। इसमें हम प्रॉपर्टी वर्ड को क्यों डाला है कि राम अपना घर में एक रूम यूज़ करके और उसमें 1 लाख रुपये का सामान खरीद के दुकान खोला है, तो राम के लिए कैपिटल देखने में तो 1 लाख लगता है और श्याम घर से 2 लाख रुपया लेके आते हैं और उनमें से 1 लाख से एक रूम बना लेते हैं और बाकी 1 लाख का सामान दुकान में लगाते हैं। तो श्याम का कैपिटल सीम्स टू बी 2 lakhs, लेकिन बिजनेस में दोनों का सामान सिर्फ 1 लाख का ही है, तो ऐसे में सही नहीं होता है। राम और श्याम को अलग सोचना सही नहीं होगा। तो राम का कैपिटल होगा उनका 1 लाख का पूंजी प्लस 1 लाख का उसका अपना ही बिल्डिंग। वो अपना बिल्डिंग तो नेचुरली तो नहीं डेवलप हुआ, कभी तो उन्होंने बनाया होगा, तो जब कभी भी बनाया है उसमें तो पैसा का लागत आया होगा, तो इसी हिसाब से वो बिल्डिंग को भी आप कैपिटल में पकड़ सकते हो। फिर आते हैं इनकम। एनी कैरेक्टर जो आपके लिए पैसा लेके आते हैं, दैट इज़ इनकम। और एनीथिंग जिसके थ्रू आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। द इनकम, कैश इनफ्लो and expenditure cash outflow। मेरे ख्याल से अब हम एक एग्ज़ाम्पल की
सीखेंगे तो देन इट विल बी मोर क्लियर। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने ये दिखाया है कि लैंड परचेज्ड फॉर कैश। एक नंबर में हमें लैंड होता क्या है, एक एसेट। परचेज किया है मतलब एसेट आपके पास आए हैं। अब इसका मतलब तो ये फिजिकली लैंड पैदल चल के आपके घर आए, ये तो मैंने नहीं बताया। इसका इतना तो फ़नी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। सो आपका प्रॉपर्टी लिस्ट में लैंड आया है, यही मेरा मतलब है कि आपका प्रॉपर्टी लिस्ट में संपत्ति का लिस्ट में एक नया संयोजन होता है लैंड। दैट्स वाई लैंड इज़ एन इंक्रीज फैक्टर फॉर यू। और एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो नेचुरली लैंड इंक्रीज होने से भी आपका इसका कैरेक्टर क्या हो गया, डेबिट कैरेक्टर हो गया। उस लैंड को खरीदने के बदले में आपका हाथ से क्या चला गया, कैश चला गया। सो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे दिखाने को मिला है कि कैश, जो खुद भी एक अनदर एसेट है। लेकिन इस बार कैश क्या हुआ, आपके हाथ से चला जा रहा है बिकॉज लैंड आया है, बदले में आपको पैसा चुकाना पड़ रहा है। यू हैव टू पे मनी अगेंस्ट द परचेजिंग ऑफ लैंड। दैट यू आर पेइंग मनी अगेंस्ट द परचेजिंग ऑफ लैंड, दैट मनी गोज आउट फ्रॉम योर हैंड। सो एसेट डिक्रीज होने से आप इसको क्या लिखोगे, क्रेडिट। यू विल राइट इट एज क्रेडिट। दैट इज़ वाई आपका जो जर्नल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि लैंड डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। पैसा कितना था, 1,00,000, तो डेबिट में 1,00,000, क्रेडिट में भी 1,00,000। बाकी इसमें एक तो चीज़ आता है, इसको हम बोलते हैं नरेशन। बीइंग लैंड परचेज फॉर कैश। ये जो जर्नल एंट्री है वो अगर किसी अकाउंटेंसी का बाहर का कोई आदमी अगर इसको समझना चाहेगा तो ये लैंड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट बोलने से उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि लैंड का साथ क्या घटना घटी या कैश के साथ क्या हुआ, किस लिए इसको डेबिट कर। आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको समझाया। लेकिन जिसको मैंने नहीं समझाया वो अगर ये पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए ये नरेशन है। ये नरेशन उस आंसर को, उस लैंग्वेज को एक नॉर्मल, सबके लिए कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में साथ ही साथ दे के रखा है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज ऑफ एसेट एज वेल एज डिक्रीज ऑफ एसेट। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने ये दिखाया है कि हाउस रेंट पेड। हाउस रेंट पेड, पेड बोलते से ही ये क्या में चला गया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। अगर हाउस रेंट रिसीव्ड होता तो ये इनकम में चले जाते। हाउस रेंट अगर रिसीव्ड होता तो कहाँ पे चले जाते, दिस इज टर्न टू बी ए इनकम। बट यहाँ पे पेड लिखा है तो नेचुरली इट्स ए एक्सपेंसेस। हाउस रेंट इज एन एक्सपेंसेस। जितना एक्सपेंसेस आप क्रिएट कर रहे हो उतना एक्सपेंसेस आपके लिए इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर हमने तो पे किया है तो हमारे लिए इंक्रीज क्या हुआ है। हाँ, आप पूछ सकते हैं कि आपको क्यों लगता है आपको डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है ये आपको लग रहा है। आप भी सही है कि आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या दे रहा है, आप पे क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। हाउस रेंट
बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन कैश बोल के एक चीज़ होता है, नोट्स होता है, पैसा होता है जो आपका हाथ में होता है, आप अपने हाथ से लाके दूसरे आदमी को दे देते हैं। इससे इसीलिए आपको ये समझ में आ रहा है। तो कैश पेड, तो कैश इज एन एसेट, ठीक है। कैश पे कर रहा है, सो कैश इज एन एसेट, और एसेट पे करने का मतलब है एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया। और आप हाउस रेंट जितना नया नया हाउस रेंट देते रहेंगे तो आपका टोटल हाउस रेंट का हिसाब जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप पहला हाउस का 5,000 रुपया दिया, दूसरा हाउस का आप 4,000 रुपया दिया, तो टोटल हाउस रेंट आप इस महीने में कितना दिया? 5,000 प्लस 4,000 इजुकल टू कितना दिया? 9,000। तो ये इंक्रीज ही होते हुए दिखाई दे रहा है। द मोर हाउस रेंट यू पेइंग, द मोर टोटल हाउस रेंट विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन थे हाउस रेंट एंड एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से इसको क्या बोलना चाहिए? डेबिट। तो आपने लिखा हाउस रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग हाउस रेंट पेड। तो फिलहाल हमने ये आपको बताया कि जर्नल एंट्री है क्या, फिर जर्नल एंट्री के लिए आपको किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, जर्नल एंट्री के लिए इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, फिर जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या रूल फॉलो करना है, जर्नल एंट्री के लिए आपको ऐसा रूल फॉलो करना है, ठीक है। फिर इन रूल्स में क्या है, इन रूल में एसेट के बारे में है, लायबिलिटी के बारे में है, कैपिटल के बारे में है, इनकम के बारे में है, और एक्सपेंडिचर के बारे में है। एसेट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। फिर हमने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताया, इधर एक एग्जाम्पल बताया, उधर एक एग्जाम्पल बताया। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम इस तरह से एसेट एक इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज करते हुए दिखाया। दूसरे एग्जाम्पल में हम एक एक्सपेंडिचर्स एक हाथ में इंक्रीज होते हुए बताया और एसेट्स डिक्रीज होते हुए बताया। सो ये था बस एक दो एग्जाम्पल। इस तरह से हर जर्नल एंट्री को आप समझ सकते हैं अगर आपने रूल को पहले मन में बिठा लिया है तो। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या मीन करना चाहता हूँ। तो जिस बच्चे को जर्नल एंट्री सीखने का इच्छा है उनके लिए सबसे पहला काम होगा रूल्स को मेमोराइज कर लेना। रूल मेमोराइज हो जाने के बाद उनके लिए दूसरा काम होगा कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स को या लिस्ट को मन में परमानेंटली याद कर ले, ताकि कोई भी अकाउंट्स के नाम सुनते ही उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एसेट कैटेगरी में आते हैं कि लायबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने आपको बोला बैंक और दूसरे एक व्यक्ति ने आपको बोला बैंक लोन, सो आपको बैंक माने आपको एसेट समझना चाहिए और बैंक लोन माने आपको लायबिलिटी समझ में आ जाना चाहिए, वो भी तुरंत। इसीलिए आपको इसका लिस्ट पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है 8
ओके, इससे आप मुझसे आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा. वट एवर यू हैव द डाउट्स अबाउट दिस, यू कैन आस्क मी अबाउट इट. ओके, so thank you dear student and have a good day.